Assalamualaikum, dear student. I am Zinla Wazir. Dear student, if you glance sight on the screen, then you can see some words. What is electric field? What is electric field? So, electric means. So these the two words. The both words having a different meaning. So electric, while other word is field. Electric means charge, while the electric means charge, while field means region, ilaka. Means that the region around the charge is called electric field. यानी किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन होता है, जो इलाका होता है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस, उस हदूद, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी फील्ड? इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, यानी चार्ज की हदूद, चार्ज की रीजन, चार्ज की फील्ड को हम क्या कहते हैं? एज अ होल इलेक्ट्रिक फील्ड. Dear student, there is two kind of charge. One is positive charge, while other is negative charge. Both the charge having different electric field line direction. You can see on the screen that the first picture represent a positive charge. Electric field line is outward from the positive charge, while the second pic you can see is that it is a negative charge in the red color, while here in the electric field lines is inward to the negative charge. So both the positive charge is completely opposite at one 80 angle. You can see that the electric field is outward from the positive charge, while the electric field line is inward to the negative charge. So that is the main difference between positive charge and the negative charge. While the third picture you can see this dash line represent the limit of the region where is the field of this positive point source charge. This is the source charge, point source charge, while this is limited where it represents the electric field of this charge, point charge. So what is E? E is the electric field, where K is constant, Q is the source charge, R is the distance between 2 point charge. So how we can explain, how we can define theoretically that what is electric field? So now I'm going to the next slide. Dear student, electric field defined as a region around a charge particle or object within which a force would exert on other charged particle or object. This is a definition of electric field. Or other definition you can see on this white page introduction. There is another definition of the electric field. An electric field is a region of a space around a charge where a positive discharge experience a force. ये भी वही डिफिनेशन, दोनों डिफिनेशन है, आप इसको आप लिख सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस, वो स्पेस का वो रीजन अराउंड अ चार्ज के इर्द गिर्द वेयर अ पॉजिटिव डिस्चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, जहाँ पे पॉजिटिव डिस्चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रही हो, उस रीजन, उस इलाके को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव डिस्चार्ज जो हमेशा के लिए हमारे पास, हम कन्वेंशियली हमने क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना है. कन्वेंशियली डिस्चार्ज को हमने क्या लेना होगा? ऑलवेज पॉजिटिव लेना होगा. ये भी एक एमसीक्यूज में बार बार ये पॉइंट रिपीट होता है कि डिस्चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और कन्वेंशनली पॉजिटिव, ये हमारे पास कन्वेंशनली पॉजिटिव होगा. सो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और ये इसके गिर्द क्या है? रीजन है.
इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन है। और ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। जिस रीजन के अंदर इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करे ये सोर्स चार्ज या रिपेल करे, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करते हैं किस चीज के जरिए से, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट शेप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप भी है और एक यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज भी है। पॉइंट चार्ज हुआ, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप उस फॉर्म में है स्प्रेड हुए चार्ज, और यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म में चार्ज स्प्रेड हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज पैरेलल प्लेट फॉर्म में स्प्रेड हुए हैं। और यहाँ पे मल्टीपल चार्ज है। मल्टीपल चार्ज मीन्स मोर देन टू और one charge is called multiple charge. So dear students, remember that so the electric field lines have their specific direction. So electric field is a vector quantity. A vector quantity you can see in this multiple point charge picture. So this charge have its own direction in this direction, while this charge have their own direction in this direction. It means that electric field is a vector quantity. So this MCQs is repeated in the previous competitive test. So this is E represent electric field. There is a arrow above its head, so to represent the vector quantity. Electric field is a vector quantity. It is the force, electric field force. So E is the charge in coulomb. So आगे की तरफ हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और यहाँ पे 3 वर्ड्स है। थर्ड वर्ड यहाँ पर आपको एक इजाफा नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? उर्दू में इसको हम कहते हैं शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, किस चीज की क्वांटिटी है? इस क्वांटिटी के जरिए से हम क्या मालूम कर सकते हैं? सो इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके जरिए से किसी भी चार्ज का जो फील्ड है, उस फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रांग हो तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का फील्ड जो है ये भी स्ट्रांग है। जहाँ पे इंटेंसिटी कम हो तो इट मींस दैट कि वहाँ पे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। आप देख सकते हैं, इसका जरा थोड़ा बहुत मैंने इसका एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द स्ट्रेंथ of the electric field is measured using a quantity. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर करते हैं किस चीज के, एक क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेटर होता है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो इसका डिफिनीशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपना जो डिफिनीशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रहा है किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, कितनी शिद्दत के साथ उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किस चीज के बराबर है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो हाउ यू कैन prove that? So we can prove that, we can say we know that, so electric E is equal to force per unit charge, where force is the Coulomb law. Force is the Coulomb law. We are put the value of Coulomb law, F is equal to Coulomb law, you can know that K Q1 Q
2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो f की जगह ये हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, ये यहाँ पे पुट करो, ये q इस q के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये q जो हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है q1 की जगह। और ये कैपिटल Q जो है ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो Q है, या इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, एक K बच जाएगा, दूसरा Q बच जाएगा, नीचे हमारे पास d स्क्वायर बच जाएगा। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी का क्या है, फार्मूला है। K हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। Q हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। और D हमारे पास क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is called d square। so ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड vs magnetic field। so there is a two picture, on the left side you can see there is electric field, while on the right side you can see it is a magnetic field। so what is the comparison between these two different field? So you can see that, so in there is a positive charge, it is a negative charge, it is a north pole while it is the south pole। so in the electric field line is emitting from outward from the positive charge, while it's enter to the negative charge। in the same manner, or in the left on the right side, in the magnetic field, the magnetic field line is emitting or originating from the north pole while entering to the south pole। it means that in the electric field show the same behavior just like north pole show in the magnetic field, while the negative charge show the same behavior just like the north pole show in the magnetic field। so it is the main comparison between electric field and magnetic field। so next slide, law of conservation of charge is the most important topic। so what is the law of conservation of charge? so it is can define as, so electric definition as, charge cannot be created nor destroyed, but it's merely transferred from one object to another। इसका मतलब ये है कि हम चार्ज को ना पैदा भी कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, बट चार्ज सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है। सो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसके क्या है, जरूरी है, इस पॉइंट को हमने देखना है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कोई भी क्लोज सिस्टम हो वहां पे चार्ज का अमाउंट जो है मस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दो पिक्चर बहुत आला नॉलेज है, बहुत डीपली नॉलेज इसमें है। इन दो पिक्चर को अगर आप देख ले, यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है जिसमें 6 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव 6 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव 14 कूलम ऑफ चार्ज है। इन दो चार्ज बॉडी को अगर आप देख ले, यहाँ पे आपस में सेपरेट है। अब इन दोनों चार्ज बॉडी को अगर हम आपस में इन कांटेक्ट कर ले, आपस में टच कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तादाद ज्यादा है, वो इधर नेगेटिव चार्ज की तादाद कम है, वो नेगेटिव चार्ज की तादाद यहाँ पे आ जाएंगे। सो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल करेगा, एक न्यूट्रल सिस्टम बन जाएगा। तो बाकी यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 8 जो बचेंगे, इसमें हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम चार्ज एक बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा, हाफ दूसरी साइड पे रहेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ये हाफ चार्ज यहाँ पर रहेंगे और हाफ नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे रहेंगे, जब इन दोनों बॉडी को हम आपस में सेपरेट कर ले। सो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप देख सकते हैं जस्ट बॉडी से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, लेकिन हमने ना पैदा किया और ना यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रॉयड हुआ है। डियर स्टूडेंट, आखिर में एक न्यूमेरिकल है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना चाहिए। आप ये एमसीक्यूज जो है, this numerical is completely related to the previous lecture। This numerical, you can see that the force acting between 2 point charge kept at a certain distance is phi। now the magnitude of the charge is double and the distance between them is a half। so the force acting between them is, दो चार्ज है, इसके बीच में अगर हम चार्ज डिस्टेंस हाफ कर ले और चार्ज का मैग्नीट्यूड हम डबल कर ले, तो इन दोनों के बीच में
कितना फोर्स लगेगा इसको आपने क्या करना है, मालूम करना होगा। बहुत इजी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी